Students, the poem that we people are going to have today is The Village Schoolmaster by Oliver Goldsmith. But before going further in this poem, let's have some basic facts about the poem and the poet. Students, Oliver Goldsmith was born on 10th of November 1730 and he died on 4th of April 1774. He was natively an Irish. He was a great novelist, playwright and poet, and he is particularly known for his novel The Vicar of Wakefield. He is also very much famous for his pastoral poem, The Deserted Village. Our present poem, The Village Schoolmaster, is actually an extract from this particular poem. And his plays, he has written very good plays like The Good-Natured Man and She Stoops to Conquer, which was first performed in 1773. He has also written an history of the earth and animated nature. This is also his famous work. Apart from this, he is also thought to have written the classic children's tale, The History of Little Goody Two Shoes. So that's all about the author. Now we proceed towards the poem. The poem The Village Schoolmaster, as I told you earlier, is actually an extract from the longer poem written by Goldsmith entitled as The Deserted Village. And as the word village is there in the title itself, it clearly suggests that the setting of the poem is in a rural area. Probably it is the place where the speaker himself lived earlier in the early phase of his life. It is also guessed that perhaps the schoolmaster who is presented in the poem is the poet's teacher, Thomas Byrne. So this poem is about that teacher. The poem also portrays a realistic picture and the speaker's sentiments about the teacher. So let's have the poem now. Beside yon straggling fence that skirts the way, with blossomed furze unprofitably gay, there, in his noisy mansion, skilled to rule, the village master taught his little school. Now the poet says that the village school of the village was situated next to the irregular fence. The straggling fence here stands for the irregular fence that fringed the village path, and it was all covered by full blossomed, beautiful ornamental furze. That's why this unprofitably gay word has been used, because it was only an ornamental fur. There was no use of it besides giving beauty to the surroundings. So the whole path was covered by that furze tree rather. And in such a place, the village master, who perhaps was the not only the school teacher but the master of that particular place, because the school belonged to him, he was, according to the poet, very much skilled to rule. That means he was very capable as a teacher, and he used to teach in that particular school. So this paragraph is perhaps very picturesque in its presentation of the school. See, the beautiful surrounding has been captured graphically by the poet. So it appears as if a kind of picture is, you can say, being presented to us, and we can very well imagine the particular school
We can very well imagine the condition of the school. It was all covered, the path to the school was all covered with beautiful furze plants, trees, and the schoolmaster himself was quite capable as a teacher. Let's proceed. A man severe he was, and stern to view. I knew him well, and every truant knew. Well had the boding tremblers learned to trace the day's disasters in his morning face. See, here the poet is giving us a very clear observation about the teacher. He says that the teacher was a strict disciplinarian, and even look wise, he appeared to be a kind of ferocious person, a kind of strict person. And the poet says, I knew him well. He was very well familiar to the poet. And why? The reason behind it, he says, all the truants, that means all the brats of the school, they knew him. That means probably our poet also belonged to the same category. So he says the teacher was very stern to look at. He was very serious kind of a person, and the students very well knew his nature, especially the students who were notorious. They were quite familiar with him. We can very well guess about the reason behind this, because he used to punish them. Obviously, the teacher who is strict is very much popular among those students who are notorious. So same was the case here also. Well had the boding tremblers learned to trace the day's disasters in his morning face. He says the pupils used to guess about the preceding day by just looking at the face of the teacher. That means the face of the teacher very well reflected the mood of that person. The teacher's mood was very well reflected on his face. And even the students had learned the art of just knowing about their fate for the day just by looking at the face of their teacher. So before we proceed any further, let me have the whole thing in Hindi for the benefit of those students who are not very well, you can say, comfortable with the English. सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं वो है द विलेज स्कूल मास्टर, और ये लिखी है ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने. तो हम कविता तक पहुँचें उसके पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं कवि से. ऑलिवर गोल्डस्मिथ की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1730 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1774 में. ये आयरलैंड से जो आयरलैंड के थे और आयरिश नॉवेलिस्ट थे, और एक उपन्यासकार, नाटककार और कवि के रूप में इन्हें हम पहचानते हैं. ख़ास तौर से ये नॉवेल्स के लिए प्रसिद्ध हैं. इनका सबसे प्रसिद्ध वर्क जो एज अ नॉवल रहा है, एज अ नॉवेलिस्ट रहा है, वो है द विकार ऑफ वेकफील्ड. इसके अलावा ये अपनी पास्ट्रल पोएम्स के लिए भी जाने जाते हैं. पास्ट्रल पोएम्स में यहाँ आपको बता दूँ वो कविताएं हैं जो ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण जीवन को हाईलाइट करती हैं, कैप्चर करती हैं, उनके बारे में होती हैं, उन्हें हम पास्ट्रल पोएम्स कहते हैं. तो इनकी ख़ास महारत थी पास्ट्रल पोएम्स में. इनकी ख़ास रचनाएँ हैं द डिज़र्टेड विलेज, और इनका मैं नाम लेना चाहूँगी प्लेज का द गुड नेचर्ड मैन, और शी स्टूप्स टू कॉन्कर. शी स्टूप्स टू कॉन्कर तो बहुत ही फेमस रहा है इनका नाटक. और मैंने नाम लिया द डिज़र्टेड विलेज, इनकी लंबी कविता है. और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि जो आप ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं द विलेज स्कूल मास्टर, ये एक्चुअली एक तरह से इसी कविता का इस लंबी कविता का एक टुकड़ा है. इसके अलावा इन्होंने एन हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड एनिमेटेड नेचर नाम का बहुत खूबसूरत सा काम लिखा है.
और इसके अलावा ये माना जाता है कि बच्चों की कहानी द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज़ भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। तो इस तरह से ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। चलिए हम और समय ना वेस्ट करते हुए कविता के बारे में पढ़ें। तो आपकी जो कविता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पोएम है ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ की बड़ी कविता द डेजर्टेड विलेज के से एक लिया गया टुकड़ा है। और जैसा कि टाइटल में ही विलेज शब्द का उपयोग है, तो ये जो कविता है, बड़ी कविता, और ये जो टुकड़ा है ये रूरल एरिया में, ग्रामीण परिवेश में सेट है। और शायद ये माना जाता है कि कवि ने खुद अपने बचपन में जहाँ समय बिताया था, जिस गांव में, उसके ऊपर उसने ये कविता आधारित की है, बेस की है। और ये भी माना जाता है कि जिस स्कूल मास्टर के बारे में इस कविता में बात की जा रही है वो उनके कवि के खुद के टीचर थे, जिनका नाम है टॉमस बायन। चलिए हम अब आते हैं कविता पर। मेरा ख्याल है बैकग्राउंड आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस बारे में कविता पढ़नी है और कैसी कविता पढ़नी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता। Beside yon straggling fence that skirts the way, with blossomed forged unprofitably gay, there, in his noisy mansion, skilled to rule, the village master taught his little school. शुरुआत में सबसे पहले हमें उस स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, उसकी लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है जिस स्कूल में वो मास्टर जी, वो गुरु जी पढ़ाया करते थे, जिनके ऊपर ये कविता आधारित है। तो पोएट कहता है कि दूर उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में, जो कि टेढ़ी मेढ़ी झाड़ी से ढका हुआ है, और वो जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जो घिरा हुआ है खूबसूरत फर्ज के पेड़ों से, जो कि बहुत खूबसूरत हैं लेकिन सिर्फ ऑर्नामेंटल हैं, यानी अनप्रॉफिटेबल हैं, यानी उनसे हमें और कोई लाभ नहीं है। भाई जैसे पेड़ों से हमें फल फूल इत्यादि मिलते हैं, ऐसा कुछ हमें उससे नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनको हम ऑर्नामेंटल कहते हैं। तो वो जो फर्ज है वो ऑर्नामेंटल फर्ज है, और उसी से वो पूरा गांव का रास्ता घिरा पड़ा है, जो कि स्कूल के बगल में है, जिसने एक तरह से स्कूल के चारों ओर फेंसिंग की हुई है, बाड़ाबंदी की हुई है। There in his noisy mansion skilled to rule, वहाँ उस मतलब वो जो फर्ज के पेड़ों से जो घिरा हुआ रास्ता था, उस जगह पर वो जो मेंशन है, वो जो निवास स्थान है, जो कि नॉइजी है, शोरगुल से भरा हुआ है। जाहिर बात है कि यहाँ स्कूल की बात की जा रही है, और उसको नॉइजी मेंशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चों के शोर से वो गूंजता रहता है हमेशा। तो उस शोरोगुल से भरे हुए मकान में, निवास स्थान में, स्किल्ड टू रूल, जिसे शासन करने की कुशलता प्राप्त है, कौन? द विलेज मास्टर, गांव के गुरुजी। यानी जाहिर बात है स्कूल के ऊपर किसका शासन रहता है? टीचर का। तो उस पूरे स्कूल के जो कर्ता धर्ता थे, जो जिनको कुशलता प्राप्त थी उस पर शासन करने की, ऐसे गुरुजी टॉट हिज लिटिल स्कूल, वहाँ अपने छोटे से स्कूल में पढ़ाया करते थे। यानी कि वो जो स्कूल है जो चारों ओर से टेढ़े मेढ़े रास्ते से घिरा हुआ है, वो रास्ता जो कि फर्ज के खूबसूरत पेड़ों से घिरा हुआ है, उस जगह पर, ऐसे स्थान पर जो शोर से भरा हुआ है, वहाँ पढ़ाया करते थे गुरुजी अपने छोटे से स्कूल में, जिन्हें काबिलियत प्राप्त थी, जो कि काबिल थे, स्किल्ड थे वहाँ पर पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन सिवियर ही वॉज एंड स्टर्न टू व्यू। अब गुरु जी की बात की जा रही है कि भाई वो कैसा, उनका व्यक्तित्व कैसा था। और एक बच्चे के रूप में, एक देखिए, टीचर को सबसे बेहतरीन अगर कोई जज कर सकता है तो वो उनका स्टूडेंट होता है ना। टीचर और टॉट का एक बड़ा ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है। टीचर की जो भी काबिलियत है वो झलकती है अपने
स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने टीचर से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो टीचर को बड़ा अहम स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसी बात को कह रहे हैं कि मतलब टीचर को देखकर बच्चों को सब चीज़ें पता चल जाती थी। तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि अ मैन सिवियर ही वॉज, कि जो गुरु जी थे वो देखने में बड़े गंभीर से लगते थे, बड़े मतलब क्रोधी स्वभाव के से लगते थे। अनस्टर्न टू व्यू, उनको देखने में लगता था कि वो बहुत ही सख्त मिजाज हैं, बड़े गंभीर किस्म के थे। ये एक तरह से एक बच्चे का नज़रिया, एक स्टूडेंट का नज़रिया है अपने टीचर के बारे में। आई न्यू हिम वेल, पोइट कहते हैं कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। एंड एवरी ट्रूएंट न्यू, और मैं ही नहीं, हर ट्रूएंट, हर बदमाश बच्चा उन्हें जानता था। अब ये तो बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई टीचर को सबसे अच्छी तरह से बदमाश बच्चे ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि आए दिन अपनी बदमाशी के एवज में उनको सज़ा मिलती रहती है। तो टीचर सख्त हैं या नर्म हैं, इसका सबसे ज़्यादा अगर कोई कह सकते हैं फ़ायदा या नुकसान उठाता है तो वो है बदमाश बच्चे। तो कहीं ना कहीं पोएट ये कह रहे हैं कि वो खुद भी उस तरह की बच्चों में शामिल थे, बदमाश बच्चों में। तो कह रहे हैं कि गुरुजी जो थे वो देखने में बड़े ही सख्त लगते थे, बड़े गंभीर लगते थे, और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि हर बदमाश बच्चा उन्हें अच्छे से जानता था। Well, had the boarding tremblers learned to trace the day's disasters in his morning face? बड़ी अच्छी सी बात कही है उन्होंने। ये कहा है पोएट ने कि जो भी ध्यान, बोर्डिंग ट्रेम्बलर था यानी उनके चेहरे पर जो भी ध्यान देता था, ट्रेम्बलर यानी कांपता था। भाई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने टीचर को बड़े ध्यान से देखते हैं कि आज सर का मूड कैसा है, आज अच्छा है, आज ख़राब है, आज गुरुजी ने आते ही डांट मारी माने पक्का सर का मूड ख़राब है। और अगर आते ही गुरुजी ने सबको शाबाशी दी, बड़े अच्छे से बात करें, तो मतलब गुरुजी का मूड अच्छा है। तो बच्चों के अंदर एक अपने आप में ये प्रवृत्ति, एक कह सकते हैं आदत सी पैदा हो जाती है कि वो टीचर का फेस रीड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हमारा पोएट जो है, हमारे पोएट, इनके अंदर भी ये क्वालिटी डेवलप हो चुकी थी। तो कह रहे हैं कि मैं और मेरे साथी, मतलब बोर्डिंग ट्रेम्बलर्स, वो लोग जो बोर्डिंग थे यानी उनके ऊपर ध्यान दिया करते थे, ट्रेम्बलर्स और कांपा करते थे। लर्न टू ट्रेस, हमने सीख लिया था ट्रेस करना, पता लगाना, पहचान करना। क्या? द डेज डिजास्टर्स, दिन भर होने वाले आपदा विपदा का, इन हिज मॉर्निंग फेस, सुबह सुबह गुरुजी के चेहरे को देखकर हमें दिन भर होने वाले विनाश या विपत्ति का पहले से ही अंदाज़ा हो जाता था। मैंने आपको बताया ना कि टीचर के चेहरे पर पता चल जाता है कि वो आज खुश हैं या नाराज़ हैं। तो बच्चे उस हिसाब से अपना स्टैंड ले लेते थे, भाई आज टीचर नाराज़ हैं तो बिल्कुल भी छूट नहीं मिलेगी। तो वो लोग उसी हिसाब से अपने आप मतलब सख्त अनुशासन में रहा करते थे। और आज गुरुजी खुश लग रहे हैं तो चलो थोड़ी बहुत छूट भी ले लेते हैं। तो गुरुजी देखने में बहुत ही सख्त लगते थे, बड़े ही गंभीर टाइप के लगते थे। और पोएट का कहना है कि वो उन्हें बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि हर बदमाश बच्चा उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। और यहाँ तक कि उन कांपते हुए बच्चों ने ये भी सीख लिया था पहचानना कि दिन भर कौन सी आफत उन पर आने वाली है, गुरुजी के सुबह सुबह वाले चेहरे को देखकर। तो मेरा ख्याल है लाइंस आपको क्लियर होंगी। इसके आगे हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।